दे दिया। There is a God who knows every secret of your life. एक परमेश्वर है जो जीवन के हर राज को जानता है। He knows what is making you cry. वो ये भी जानता है कि आपको क्या रुला रहा Your है। husband may not know, your wife may not know, your brothers, sisters may not know, but a God there who knows the beat of your heart. The God who counts the beat of your heart. पति को नहीं पता होगा, पत्नी को नहीं पता होगा, भाई बहन पास वालों को नहीं, लेकिन एक है जो आपके दिल की एक धड़कन तक को, आपके स्पंदन तक को जानने वाला। When I spoke it, जब मैंने ये बात कही, I fell at, when he spoke it, I fell at his feet. जब उन्होंने ये बात कही, मैं उनके चरणों पे गिरा, I started crying. रोने लगा। He is crying more than that we cry. हमारे से ज्यादा वो रो रहे थे। Everybody came to my house to make me and my children cry. घर में तब तक जो भी आया था मुझे रुला कर गया था। Here is a man sent by God to cry for me and my children. लेकिन यहाँ परमेश्वर ने किसी को भेजा जो हमारे लिए रो रहा है। The world will make you cry. संसार तुम्हें रुलाएगा। They will celebrate when you cry. जब आप रोते हो तो शैतान उत्सव मनाता है। If I give this mic to you, you will have a story to share the same way I'm sharing. और यहाँ पे यदि आपको मैं ये माइक दूं तो आपकी कथा भी वही होगी जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूं। Then I started beating my chest. मैंने अपनी छाती पीटना शुरू किया। Tell me, मुझे बताओ why this happened in my life? ये सब मेरे जीवन में क्यों हुआ? When I am beating on my chest, जब मैं अपनी छाती पीट रहा था, he held on my hand. उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा Don't beat before your children. और कहा बच्चों के सामने खुद को मत मारो। I know there is pain in your life. मुझे पता है दिल में जीवन में दर्द है। If you beat on your chest, your children will not be able to bear it. यदि आप खुद को पीटोगे तो बच्चे सह नहीं पाएंगे। Beat on me आप मारो तो मुझे मारो ना, and release your pain. और अपने दर्द को खत्म करो। Everybody came to my house to kick my son off, lift my daughter by the hair and beat on my face. Here is a man at my house saying that when I am beating, it pained him, it hurt him. He says, don't beat on you. तब तक मेरे If you want to beat me and release your pain. तब तक जो भी मेरे घर के अंदर आया था वो मेरे बेटे को मारने, बेटी को मारने, मुझे मारने आया। लेकिन एक उस समय आया वो आकर कहता है कि मारना मत खुद को, क्योंकि उस मार से मुझे दर्द होता है। यदि मारना है तो मुझे मारो। This is what my Jesus said. मेरे यीशु ने भी यही शब्द कहे। Do you want me? आप मुझे चाहते हो ना? Let them go. उनको छोड़ दो, मुझे ले लो। That is the point I tasted the love of Jesus. उसी समय मैंने यीशु के प्रेम को महसूस किया। I asked, मैंने पूछा, if you are sent by God, मैंने परमेश्वर की आवाज आनी शुरू की, my son, मेरे बेटे, whatever you have done, जो कुछ भी तूने किया, it is in my book. ये सब मेरी पुस्तक में लिखा है। I have called you as my prophet. मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता के तौर पर बुलाया है। You are a prophetic voice in the end time. आप अंत के समय की भविष्यवाणी आवाज बनेंगे। I will send you all the nations. मैं आपको सभी देशों में भेजूंगा। You are called to enthrone the kings and to dethrone the kingdoms. मैं आपको बुलाता हूं कि सिंहासन पर लोगों को बिठाने, बैठे हुए को उतारने का तुझे अधिकार दो। Presidents and prime ministers and the kings will come to hear from you, and the army of the nations will salute you. प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नेता गण हो या सेना हो, वे आपको सम्मान देंगे, आपको सलामी देंगे। Whatever you lost, I will get you back. जो कुछ भी खोया
खोया मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। I will give back the love of a mother to her children. आपके बच्चों को माँ का प्यार लौटाऊंगा। I will use your children, all the nations, to destroy the works of devil and to build my kingdom. और आपके बच्चों का मैं उपयोग करूंगा कि शैतान के कामों को राष्ट्रों में जाकर थोड़े मेरा राज्य बनाए। He prophesied. उसने भविष्यवाणी की। Whatever he prophesied. जो कुछ भी उन्होंने भविष्यवाणी की, This is not an ordinary prophecy. ये एक साधारण भविष्यवाणी नहीं थी। More than that happened in my life. और उस भविष्यवाणी से बढ़कर मेरी जिंदगी में हुआ। You have seen it today morning. और आज सुबह आपने देखा। Hallelujah. मैं यहीं पर रहकर 3 दिन प्रार्थना करूंगा। I will not leave this house without seeing a miracle in your family. आपके परिवार में चमत्कार को देखे बगैर मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला। I want to declare the same thing in this church that my God sent me here for the same. और आज मैं इस कलीसिया में भी ऐलान करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भी इसीलिए यहां भेजा है। Listen, dear family. सुनिए परिवार वालों, He said, you must pray. उन्होंने कहा आपको प्रार्थना करनी I है। said, every day I go to the church and light the candles. मैंने कहा हर दिन मैं गिरजाघर में जाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ। He smiled at me. वो मुझ पर मुस्कुराए। Opened his Bible. अपनी बाइबल खोली He read from John chapter 4 verses 22. और यूहन्ना 4 के 22 से उन्होंने You पढ़ा। worship what you do not know. We worship what we know. Salvation is from Jews. God is a spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and truth. आप उसकी उपासना करते हैं जिसको नहीं जानते, हम उसकी उपासना करते हैं जिसे हम जानते हैं, और उसके सच्चे आराधक सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करते हैं। He turned the pages and Acts chapter 17 verses 24 onwards he started reading. और उसके बाद में प्रेरितों के काम 17 से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। And he said, Dullin handmade a temple. और उन्होंने कहा कि उन सबों को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य के रचे मंदिरों में, घरों में वास नहीं करता है। I went to all the buildings to see God. मैं हर जगह पर गया परमेश्वर को खोजने, I couldn't find. नहीं मिला। Only I lost my money. I became a debtor again. परिणाम केवल ये कि जो पैसा था वो भी चला गया, कर्जदार बन गया। I taught thousands of students 20 years. मैंने पिछले 20 साल सैकड़ों विद्यार्थियों को सिखाया। God sent this person to teach me the basic of the Bible. लेकिन परमेश्वर ने इस कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजकर मुझे बाइबल की आधारभूत बात सिखाई। He led us in the prayer of salvation. उन्होंने हमसे उद्धार की प्रार्थना करवाई। That night, उस रात my son Abhishek slept without sucking my ears. मेरा बेटा अभिषेक बिना मेरा कान चूसे आराम से सोया। I and my daughter slept. मैं बेटी हम सोए। 3 days he stayed. 3 दिन वो मेरे घर पर रहे। 4th day he went. चौथे दिन वो चले गए। He said, I'm going. उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। Do you know how he reached my house? और आपको पता है वो मेरे घर पर कैसे पहुंचे थे? When he heard this vision, जब उन्होंने ये दर्शन देखा, he spoke to his wife. उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। His wife said, और पत्नी ने कहा please go immediately. आप अभी जाओ। He said, I don't know the address. उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मालूम। His wife said, पत्नी ने कहा he is a principal and known person. Go to Cochin. वो एक प्रधानाध्यापक है, जाने माने व्यक्ति हैं, आप जाओ कोचिन में। He said, I have no money. उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। His wife took a box, only coins. उसने पत्नी ने एक बक्सा उठाया जिसमें केवल सिक्के थे, Gave to him. उसे दिया। He got in a bus in the night. और रात को वो बस पर चढ़े। Traveled all the night from one state to another state. पूरी रात यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य में आए। He came to Cochin city. कोचिन शहर में He got पहुंचे, down there. वहां उतरे। He asked some people, do you know a principal whose wife committed suicide recently? उन्होंने आकर लोगों से पूछा कि आप उस प्रधानाध्यापक को जानते हैं जिसकी पत्नी ने हाल ही में आत्महत्या की है? Somebody said, किसी ने कहा he is not in this city,
you get into another bus and go to Tripunithura. वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो दूसरे शहर में त्रिपुणितरा में रहते हैं। दूसरी बस पकड़ के जाइएगा। He waited for the bus and got into the another bus. उन्होंने बस का इंतजार किया, बस आई, चढ़े और वो चले। He came to my city. मेरे शहर में पहुंचे। There he met some students and asked, "Do you know a principal?" और वहां पे आकर कुछ विद्यार्थियों को देखकर पूछा, क्या आप प्रधानाध्यापक को जानते हैं? And they said, उन्होंने कहा, "We know him. हम जानते हैं उन्हें, Staying in this city. वो यहीं रहते हैं। Go to that professor. वो जो प्रोफेसर का घर है, He is his friend." वो उनके दोस्त हैं। Then he came to my close friend, the professor. तो ये व्यक्ति, ये जन मेरे प्रोफेसर दोस्त के पास पहुंचे। He introduced himself. उन्होंने खुद का परिचय He करवाया said, "I just want to meet him." और कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। My friend, the professor, took a sheet of paper and wrote my address और and gave to him. मेरे मित्र प्रोफेसर ने कागज का टुकड़ा लिया, मेरा पता लिखा और इस जन को दिया। Standing before me carrying this address slip. और वही परमेश्वर का जन मेरे सामने पते की पर्ची के साथ खड़ा था। Do you know how God orchestrates? आपको पता है कैसे परमेश्वर सब कुछ जोड़कर चलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, people of God. परमेश्वर के लोगों सुनिएगा। What happened after that? उसके बाद में क्या हुआ? He left. वो चले गए। He said, उन्होंने कहा, "You must go to a church where the people worship the Lord in spirit and truth." आपको ऐसी कलीसिया में जाना जहां पे लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले हो। I inquired about such a church. मैंने ऐसी कलीसिया की छानबीन की। Next Sunday, अगले रविवार I went to a church in Cochin. मैं कोचिन में एक चर्च में गया। A huge crowd. बड़ी भीड़ थी A वहां, big tent. बड़ा तंबू लगाया हुआ था। I never attended this kind of meetings. ऐसी मीटिंग में पहले कभी भी मैं नहीं गया था। I drove to there मैं वहां पे अपनी गाड़ी में गया with my children. अपने बच्चों के साथ। I saw all the people jumping, dancing, clapping and celebrating. और मैंने वहां देखा कि लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। I hid myself in the last row. मैं बिल्कुल पीछे की कतार में छिपकर बैठ गया। A man of God परमेश्वर का एक जन who operates in the prophetic. जो भविष्यवाणी स्तर पर सेवा करता था, He called my name. उन्होंने मेरा नाम बुलाया। Principal Babu Matthew, God is touching you and your children. प्रिंसिपल बाबू मैथ्यू, परमेश्वर आपको और बच्चों को छू रहा है। I took two of my children. मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाया I ran to the stage. और मंच की ओर दौड़ कर आया My children there. और वहां पे मेरे बच्चों को He came रखा। and touched on my head. उन्होंने मेरे सिर को छुआ, I fell down. मैं नीचे गिरा। Nobody came to know the previous story. That man came and nothing nobody knows. और किसी को भी ये नहीं पता था कि कोई व्यक्ति भी आया था। मेरी कहानी क्या थी किसी को नहीं पता। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली my son was on the shoulder of this prophet. और मेरे बच्चे को इस प्रॉफिट ने उठाया हुआ था And my daughter was carried by another woman on the stage. और मेरी बेटी को एक और बहन अपने The साथ में ले whole गई। people were crying. सारे लोग रो रहे थे। You know how God orchestrates. पता है परमेश्वर हमारे लिए कैसे सब कुछ जोड़ता हुआ कार्य करता है। After the meeting, the man of God met me. मीटिंग के बाद में इस परमेश्वर के जन आकर मुझसे मिले He got my address and in the night they came to my और house. मेरा पता उन्होंने लिया। रात को वो मेरे घर पर आए। I shared my testimony. मैंने अपनी गवाही उन्हें They बताई। comforted me. उन्होंने मुझे तसल्ली दी You know that I gave my life to Jesus for the ministry. और उस समय सेवकाई के लिए मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। My first meeting was in a big stadium. और मेरी पहली मीटिंग एक बड़े ऑडिटोरियम स्टेडियम में थी Thousands of people gathered there. जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। There I started my ministry. वहां से मैंने सेवकाई One शुरू की। stadium to another stadium. उसके बाद स्टेडियम से स्टेडियम, One district to another. One state to another. जिले से जिला, राज्य से राज्य, One country to another. देश से देश। Brothers and sisters, भाई और बहनों listen very carefully. सुनिएगा ध्यान से। We took leave, I and my children went and started sharing this great testimony. और हमने छुट्टी ली और मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर हम गवाही बताने के लिए Every निकल पड़े। meeting, hundreds and thousands receive. हर मीटिंगों में सैकड़ों लोग यीशु को स्वीकार करते We have थे। seen the mighty move of Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के बड़े कार्य को देखा। Eyes opening, crippled walking, dumb speaking, tumors vanishing. People started move, jumping from
the wheelchairs. अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर वाले चल रहे हैं। बड़े बड़े चमत्कार हमने मीटिंगों में देखे। The mighty works of God we have witnessed. परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को हमने खुद अपनी आंखों से देखा। After few years, कुछ सालों के बाद a man of God's daughter came to our life. एक परमेश्वर के जन की बेटी हमारे जीवन में आई। The woman of God. परमेश्वर की एक As स्त्री, God promised, my children got a mother. जैसे परमेश्वर ने वायदा दिया था, मेरे बच्चों को एक माँ मिली। Lord restored our life. प्रभु ने हमारे जीवन को पुनर्वापसी दी। Bible says, whoever finds a wife finds a good thing, he receive the favor of the Lord. और बाइबल वचन कहता है कि जो पत्नी को पाता है वो भली वस्तु पाता है और परमेश्वर की प्रसन्नता उस पर आती है। Husbands, पतियों, your wife is the favor of Lord in your life. आपकी पत्नी आपकी जिंदगी में दी गई परमेश्वर की प्रसन्नता है। Your wife is the good thing from Lord. प्रभु की दी गई एक भली वस्तु है आपकी पत्नी। But the agents of devil said her star brought problems. लेकिन उस शैतान के दलालों ने कहा था कि उसके तारे ने सब बिगाड़ कर रखा है। That word killed her. उस शब्द ने इस औरत को खत्म कर दिया। The thief comes only to steal, kill and destroy. चोर केवल चोरी करने, घात और नाश करने आता है। Jesus came to give you life, abundance of life and eternal life. लेकिन यीशु इसलिए आया कि वो जीवन दे, बहुतायत का और अनंत जीवन दे। Now my Aishwarya, अब मेरी बेटी ऐश्वर्या, she is working in a central government research center. वो केंद्रीय सरकार के रिसर्च सेंटर में जॉब कर रही है। This October 17th, Monday, her birthday. और अक्टूबर 17 तारीख को मंडे को उसका जन्मदिन है। That 1.5-year-old son Abhishek, और वो 1.5 साल वाला अभिषेक, he is doing his second year engineering. वो इंजीनियरिंग दूसरा वर्ष कर रहा है। God gave one more son. परमेश्वर ने हमें एक और बेटा दिया, He is Anugraha. वो अनुग्रह है। He is in 6th standard. वो 6वीं क्लास में है। As a family, we travel all the nations. परिवार के साथ हम राष्ट्रों में जाते हैं। We preach this good news. ये सुसमाचार लोगों को सुनाते When I हैं। came to know the love of my Jesus, जब मुझे यीशु के प्रेम का पता चला, God said, परमेश्वर ने कहा, leave everything behind. सब कुछ पीछे छोड़ दे, Move from this city. इस शहर से चला जा Go to another city. और दूसरे शहर में जा। Long 20 years I worked hard and I built up 9 institutions. और पिछले 20 साल मैंने मेहनत करी और 9 संस्थानों को, कॉलेजों को तैयार किया। And when I heard the voice of God, लेकिन जब यीशु की आवाज सुनी, I left everything behind. सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया। I took this Bible and traveling all the nations, preaching this good news that God gave me a life to preach His good news. और ये बाइबल उठा ली, राष्ट्रों में जाकर ये गवाही देने लगा कि मुझे यीशु ने जीवन दिया है। There's a God एक परमेश्वर है who alive. जो जीवित है। No temptation has overtaken you, but such as is common to man. God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide a way of escape also, that you may be able to endure it. किसी पर भी परीक्षा ऐसी नहीं आती जो उसके सहने से बाहर हो, जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। वो परमेश्वर परीक्षा नहीं देता है, बुराई से परीक्षा नहीं करता है। यदि वो परीक्षा दे भी तो बचने का एक उपाय भी तैयार करता है कि आप उसे सह सको। I shared only 25%. मैंने अपनी गवाही का केवल 25% ही बताया है। That much only I could say. इतना ही मैं बता सकता हूँ। Cases are pending in the court. अभी भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे I हैं have no permission to speak. Who are this group all? और ये सारे लोग कौन कौन हैं उनको बताने की अनुमति मेरे पास नहीं है। I'll come again मैं दोबारा आऊंगा and share everything. और सब कुछ फिर बताऊंगा। The untold story. वो कहानी जो अनकही है। This is more than enough. इतना आज के लिए काफी है। It's enough, more than enough. काफी है।
What is your problem? आपकी समस्या क्या है? What is your problem tonight? आज आपकी क्या समस्या है? Shall I pray for you? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Can you please stand on your feet? सब लोग कृपया खड़े हो जाएं। How many of you came here for the first time too? आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? ऐसी सभा में पहली बार आए हैं? Can you lift up your hands? अपने हाथ उठाकर दिखाइएगा एक बार और। Can you pray this small prayer with us? हमारे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइएगा। I'll pray in English and pastor will repeat it in Hindi. आप हिंदी में जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, Today I took a little time. मैंने आज थोड़ा समय लिया है। Don't worry. घबराने की बात नहीं है। This is a huge investment in your life. आपके जीवन में जो निवेश आज आया है वो बड़ा है। Tonight you are not going back as you come in. आज आप जैसे आए थे वापस ऐसे ही नहीं लौटेंगे। You are having an encounter today. आप मुलाकात कर कर लौटेंगे। While I was sharing the testimony, my Holy Spirit was doing something great what you could not even imagine in your life. जब मैं अपनी गवाही बता रहा था तो पवित्र आत्मा एक ऐसा बड़ा कार्य आपके लिए कर रहा था जो आपकी कल्पनाओं से परे है। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Everybody. हर कोई अपनी आंखें बंद करे। The people who came here for the first time and the people who wanted to give your problems, all problems with your life to Jesus, lift up your hands. जो अब पहली बार आज यहाँ पर आए हैं और जो अपना पूरा जीवन सारी समस्याओं के साथ यीशु को देना चाहते हैं तो वो अपने हाथ एक बार और उठाएं। No need to change name or religion. धर्म या नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। Give your problems to him and he will give you a solution. करना केवल इतना है कि समस्या यीशु को दें, वो अपना समाधान आपको देगा। Pray this prayer. मेरी इस प्रार्थना को दोहराइएगा Loudly. ऊंची आवाज में इस शब्द को कहिएगा। Jesus, I believe you are the Son of God. हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। You came on this earth as a human being and died on the cross of Calvary for my sins. आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। अपनी ऊंची आवाज में कहिएगा। ऊंची आवाज में जो लोग नए आए हैं वो इसे दोहराइएगा। Jesus, I believe you are alive now. यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप जिंदा हैं। Tonight I invite you into my life. आज शाम मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। Come and forgive my sins and cleanse me with your holy blood. मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। I receive you as a Savior and Lord. मैं आपको अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। Receive me as your child. मुझे अपना बच्चा बना। Tonight I declare and decree Jesus is my Lord and Jesus is my Savior. आज मैं ये घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। My body is the temple of God. मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Devil has no business with me. और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। Thank you Jesus for saving my life. धन्यवाद यीशु मेरे जीवन को बचाने के लिए। Amen. आमेन। Open your eyes. अपनी आंखें खोले। This is the small prayer we prayed before this man of God. परमेश्वर का जो जन आया था, हमने भी यही प्रार्थना की थी। Our life changed. हमारी जिंदगी बदल गई। When you prayed this prayer, जब आपने आज ये प्रार्थना की है, your sins are forgiven. आपके पाप माफ हो गए। Curses are broken. शाप टूट चुके हैं। Healing became your birthright. चंगाई आपका
जन्मसिद्ध अधिकार बन गई है। Protection of God, परमेश्वर की सुरक्षा, blessings of God, परमेश्वर की आशीष, eternal life is given to you. अनंत जीवन आपका हो गया है। You are saved. आप उद्धार पा चुके You हैं। are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Whatever Satan stole from your life, जो कुछ भी शैतान ने आपके जीवन से छुड़ाया, he must get it back tonight. हमें आज रात उसे वापस लेना है। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना The करूंगा। mighty name of Jesus. अगर आपको परमेश्वर का वचन कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।